کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر شیخ عبدالعظیم کا اسٹیج شیئر کرنا وغیرہ، اور سلف کا اس سلسلے میں کیا منہج رہا ہے۔ اس بارے میں بات ہوئی ہے اس سے پہلے، لیکن پھر میں یہاں اس سوال دوبارہ یہ سوال آیا ہے آج کی سیشن میں، تو میں اس کا مختصر طور پر ہی اشارہ کرتے ہوئے جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، ایک بات اچھی طرح سے جان لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر ان سے کوئی بڑی غلطی بھی ہو جائے، اس غلطی کی نوعیت اصل میں جاننا ضروری ہے آپ کو۔ بڑی غلطی ہو جائے تو بڑی غلطی کی نوعیت کیا ہے؟ وہ غلطی ذاتی ہے، شخصی ہے، یا عوامی ہے، ملی ہے؟ وہ غلطی ہے کیسی؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک بڑی غلطی ہے لیکن اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کی اپنی ذات سے، یعنی اس غلطی کا اثر عوام تک، دنیا تک، امت تک متعدی نہیں ہوا ہے۔ تو جو غلطی عقیدے کی کیا، منہج کی کیا ہے، اس غلطی، وہ باطل عقیدہ امت میں چلا گیا، وہ باطل منہج امت میں چلا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے، یا بالکل محدود دائرے میں ہے۔ کسی خاص چند لوگوں کے بیچ میں کوئی بات کہی ہے، غلط ہے، وہ چیز پھیلی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسے تنہائی میں نجی طور پر سمجھا دیا جائے گا اور اس کا تصفیہ کر دیا جائے گا، دلائل سے، حوالوں سے اسے بتلا دیا جائے گا کہ اس مسئلے میں آپ سے چوک ہو رہی ہے اور آپ کو چاہیے کہ اس سے آپ رجوع کر لیں، اور رجوع کر لینا، حق کی طرف آ جانا، یہ باطل پر، غلطی پر اڑے رہنے سے بہتر ہے۔ لیکن اگر اس غلطی کا، اس بڑی غلطی کا تعلق عوام سے ہو، امت سے ہو، ہم نے یہاں سے بیٹھ کر کے کوئی بات کہہ دی اور یہ سارے لوگ سن رہے ہیں، نہ جانے کتنے ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں تک وہ بات پہنچ چکی ہے، تو اب وہ باطل، وہ بہت بڑی غلطی سب میں پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی، پھیل گئی کہ نہیں پہنچ گئی، پھیل گئی۔ پھر وہ آج میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز لائیو چل رہی ہے، کوئی چیز براہ راست سنی جا رہی ہے، سیکنڈوں میں نہ جانے کہاں سے کہاں نشر ہو جا رہی ہے، نہ جانے کہاں کہاں تک وہ بڑی غلطی پھیل چکی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اس کو، اس غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے نجی مجلس میں بیٹھنا، تنہائی میں اس کو سمجھانا، یہ کافی ہے، یا اس غلطی کو وہاں تک پہنچ کر کے اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے جہاں تک وہ بڑی غلطی پہنچ چکی ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ غلطی بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، مسئلہ یہ کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ اگر وہ عقیدے کی غلطی ہے، منہج کی غلطی ہے، اور وہ بہت دور تک پہنچ چکی ہے، اور نہ جانے کس نے سن لیا اور سمجھ لیا، اپنے دل میں اتار لیا اور بھٹک گیا، بہک گیا، نظریہ اس کا تبدیل ہو گیا، تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں اس کا ازالہ وہاں تک ہونا چاہیے جہاں تک وہ غلطی پہنچی ہوئی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے وہ غلطی، بہت بڑی غلطی عوام تک پہنچ گئی ہے، تو سوشل میڈیا کے انہی پلیٹ فارم سے اس غلطی کا تصفیہ اور اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ جہاں وہ غلطی پہنچی ہے وہاں سے وہ غلطی ختم بھی ہو جائے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ میری اتاری ہوئی واضح نشانیوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان کے توبے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ چھپاتے ہیں یا غلط بتلاتے ہیں۔ توبہ کیسے ہوگی؟ الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ مطلب یہ باطل عقائد کی بات چل رہی ہے میرے بھائیوں، حق چھپا کر کے، توحید چھپا کر کے جو شرک اور بدعت اور لوگوں کو گمراہی کی راہ پر ڈالنے والے تھے، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، اللہ فرماتا ہے ان پر لعنت ہے اللہ کی اور دیگر لعنت کرنے والوں کی۔ توبہ کرنے کا اصل جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ کیا ہے؟ توبہ۔ میری ایک بہت بڑی غلطی ہے جو عوام میں نشر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ الا الذین تابوا، جو توبہ کر لیں، میں اب دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، آج ہی چھوڑ دیتا ہوں، آئندہ غلطی نہیں کروں گا، ابھی چھوڑ دیتا ہوں، جو کچھ مجھ سے غلطی ہوئی اس کا مجھے احساس ہے، افسوس ہے، اور آئندہ اس طرح کی بات میں نہیں کروں گا۔ یہ ہو گئی بات کس کی؟ توبے کی۔ اس کے بعد وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنی کیا کر لیں؟ اصلاح کر لیں، اس کو ہٹا دیں، نکال دیں اپنی کتاب سے، اپنے ذہن سے، اپنے خیالات سے، اپنے دل سے، اس کا ازالہ کر لیں، اصلاح کر لیں۔ وَبَيَّنُوا، اور اسے واضح طور پر
खोल खोल करके लोगों के सामने बयान कर दे, भाई मैंने ये कहा था, मैंने गलत कहा था, मैं आज इस बात का ऐलान करता हूं कि मेरी वो बात गलत थी, मैं उससे रुजू करता हूं, मेरा मौकिफ वो नहीं था, मेरा मौकिफ ये है जिसकी वजाहत मैं आज कर रहा हूं। मेरी पहली वाली बात को रद्द कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उसे मिटा दिया जाए, मेरे हवाले से उसे ना बयान किया जाए। लिल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू, ये तबयीन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तबयीन कहां से होगी? जहां से वो फैली है गलती, वो बुराई, वो कमी और वो बड़ा फसाद, बड़ी खता जहां तक फैली हुई है, अगर हम उसी प्लेटफॉर्म से वहां तक वजाहत नहीं करेंगे, तबयीन नहीं करेंगे, तो बताइए कि आप उसकी वजाहत का और कौन सा रास्ता है आपके पास? मैंने बड़ी गलती की, आपने तन्हाई में पहुंच करके मुझे समझा दिया, ठीक है मैं तो समझ गया, लेकिन वो गलती तो आवाम के अंदर फैली हुई कि नहीं फैली हुई? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इन दोनों का फर्क समझने की जरूरत है कि उस गलती का मामला है कैसा, उसकी नौइयत क्या है, वो अवामी है, जमहूरी है, पब्लिक तक पहुंचने वाली चीज है, या उसका ताल्लुक मेरी अपनी जात से है, एकदम महदूद दायरे में है। जैसी चीज होगी वैसा उसका इजाला किया जाएगा। अगर वो निजी है, जाती है, तो जाती इस्लाह कर दी जाएगी, काफी है। लेकिन अगर उसका ताल्लुक सारी दुनिया के अंदर फैल जाने से ताल्लुक है उसका, तो उसका इजाला वहां से होना चाहिए। सलफ इस सिलसिले में क्या मनहज रहा है? सलफ का इस सिलसिले में यही मनहज रहा है, सलफ सालिहीन का इस सिलसिले में यही मनहज रहा है। जिन लोगों के बातिल अकाइद व नजरियात उम्मत के अवाम तक पहुंचते थे, उनका नाम लेकर के वजाहत के साथ सारी दुनिया के सामने हमारे असलाफ बयान करते थे। हमने इससे पहले भी जिक्र किया, जदीद मनाहिज में आपने इससे पहले एक बार नहीं कई बार पढ़ा है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से हारिस मुहासबी के बारे में पूछा गया, उनके बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने साफ साफ क्या फरमाया, उनकी किताबों से खबरदार, उनकी किताबों को नहीं पढ़ना, क्योंकि वो सब बिदात और गुमराहियों की किताबें हैं। फला से बच करके रहना, किससे? फला से बच करके रहना, माबद जुहनी से बच करके रहना, इसलिए कि वो तकदीर के इनकार का कायल था। अब कोई कहता है भी तकदीर का इनकार करता है, तन्हाई में आप समझा दिए होते कि तकदीर साबित है, अल्लाह ने 50,000 साल पहले जमीन व आसमान की तख्लीक से लिख दिया है, आयत करीमा यह है, दूसरी आयत यह है, हदीस यह है, दूसरी हदीस ये, आप समझा देते। आपको सारी दुनिया के सामने कहने की क्या जरूरत थी? इय्याका व माबदनिल जुहनी, खबरदार माबद जुहनी से दूर रहना, इसलिए कि वो तकदीर का मुनकिर था। कोई आए कहे तो आपको समझ में आएगी ये बात? आप कहेंगे ना भाई कि माबद जोहनी को समझाने से थोड़ी काम चलेगा, माबद जोहनी का वो अकीदा फैला हुआ है, इसलिए लोगों को खबरदार करना है। और अगर वो चीज फैली नहीं है लेकिन फैल रही है, सरायत कर रही है धीरे धीरे, 1 2 10 20 100 200, और इस हल्के में उस हल्के में, मशरिक में मगरिब में उसके असरात फैल रहे हैं, तो उससे आगाह करना भी हमारे असलाफ का तरीका था। खबरदार, फला जगह फला आदमी आया है, इस तरह की बात करता है, खबरदार देखना, उसकी बात को नहीं सुनना, उसका अकीदा ऐसा है। ये हमारे असलाफ का तरीका था। और जो तौबा करता था वो अलल ऐलान तौबा करता था। और इस काम के लिए मेरे भाइयों, अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया दुनिया का सबसे जिंदा वाकया है। आप सब जानते हैं पहले वो क्या थे, फिर उसके बाद वहां से निकले तो फिर कहां चले गए, उसके बाद तीसरे मरहले में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अहलुस सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ पर आने की तौफीक अता फरमाई, और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया, बोल करके ऐलान किया, लिख करके ऐलान किया, आज की तारीख से मैं अपनी बिदअत से तौबा करता हूं, और आज से मेरा अकीदा वही है अस्मा व सिफात के बाब में जो इमाम अहलुस सुन्नत वल जमात इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा और मनहज, ये तरीका होना चाहिए। तो बहरहाल ये मुख्तसर जवाबात थे, और ज़ाहिर की सवालात के जवाबात हैं, इस पर लंबी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वक्त ज़्यादा हो गया, कई एक सवालात थे और बहुत सारे सवालात अभी भी हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली मजलिसों में इंशाअल्लाह उनके जवाबात एक नज़्म के साथ आपके सामने दिए जाएंगे। अब ये सिलसिला इंशाअल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की इख्तिताम के बाद, ईद उल फित्र के बाद फिर से इंशाअल्लाह तबारक व तआला शुरू होगा। और जैसा कि इससे पहले आपके सामने ऐलान किया गया कि जुमेरात का जो दर्स होता था वो इंशाअल्लाह अब इतवार को हुआ करेगा। किसी वजह से अगर उसमें कोई तब्दीली आएगी तो आपको पेशगी उसकी इत्तला दे दी जाएगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें
खास तौर पर अकीदे और मनहज के मसाइल में, तालीम और दावत के मसाइल में जो बहुत कुछ बेइतदालियां चल रही हैं, और इस वक्त जो बहुत कुछ इस सिलसिले में हमें चीजें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल रही हैं, इस तरह के तमाम तर मसाइल में हमें जल्दबाजी से अल्लाह तबारक व तआला बचने की तौफीक अता फरमाए। हालात पर नजर रखने की जरूरत है। खास तौर पर हमारे बड़े उलमा, किबार जो उलमा हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उसूलों को समझते हैं वो, तो उसूलों की रोशनी में लोगों को जवाब दें। और मेरे भाइयों, हम यहां तक जानते हैं कि एक चीज फी नफ्सी ही दुरुस्त होती है। शरीयत के उसूलों में से एक उसूल की बात हो रही है, एक चीज फी नफ्सी ही दुरुस्त होती है। समझ रहे हैं? फी नफ्सी क्या होती है? दुरुस्त होती है। अभी फिलहाल उसमें कोई ऐब नहीं होता, कोई खलल नहीं होता, लेकिन उसका नतीजा आगे चल करके खतरनाक हो सकता है। तो हमारे असलाफ सद्दन लिज़्ज़रिया, सद्दे जरिया के लिए उससे भी मना कर दिया करते थे। सद्दे जरिया का उसूल भी शरीयत के अंदर मौजूद है। जब हम देख रहे हैं कि दावत और तालीम और तरबियत के मैदान में इस तरह के लोग जो मेरे भाइयों दुखला हैं, जो मैदान इल्म और दावत से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उन लोगों ने बड़े इन्हिराफात मचा रखे हैं। बहुत सारी बातें उनकी मेरे भाइयों मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, अकीदे, मनहज और ऐसे ही हलाल हराम वगैरह के मसाइल में काफी गलतियां, काफी मेरे भाइयों उसूलों से हटकर बातें करने वाले। तो ये सारे तजर्बे हमारे सामने हैं। हम जानते हैं कि इस तरह के लोगों का यही अंजाम होता है, यही नतीजा होता है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बल्कि सद्दन लिज़्ज़रिया बहुत मोहतात रहने की जरूरत है और एहतियात के साथ ही इस सिलसिले में कोई बात कहनी चाहिए। अब ये सहाबे किराम की मिसालें देकर के आजकल के दौर पर हम फिट कर दें, क्या उनके 20 दिन और आजकल हमारे 20 दिन क्या बराबर हो सकते हैं? दोनों बातों में भी फर्क है जमीन आसमान का। इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और मैं आप तमाम भाइयों से, आप तमाम अजीजों से खुसूसी इल्तिजा करता हूं, अपील करता हूं कि अल्लाह वास्ते, इल्म अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रोशनी है। इसको जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपके यहां रोशनी की लौ बढ़ती चली जाएगी। आप उसकी फिक्र में लगे रहें, और जितना इल्म आपको है उतने इल्म के मुताबिक आप जहां रहें उस रोशनी को फैलाते रहें, बताते रहें। लेकिन ऐसा न समझ लें कि इतना हमने पढ़ लिया, जान लिया, तो हम अहले इल्म के मनसब पर फाइज होने के अहल हो गए। अब चलें घंटों की तकरीरें करें, घंटों के मसाइल का जवाब दें, और चलें हम पूरे तौर पर दाई, खतीब, आलिम और उसके अलावा मुफ्ती, मुज्तहिद बन करके, जैसे हमारे बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां खपा दी हैं, ऐसे ही हम भी हो गए हैं। तो ये कदम उठाना अवाम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, और उनसे पहले और उनसे ज्यादा खतरनाक खुद उनकी अपनी जात के लिए। इसलिए उन्हें अपनी फिक्र करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, एहतियात होना चाहिए। मैं एक आखिरी बात कह करके बात खत्म कर देता हूं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू लैला रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं, कहते हैं अदरकतु मिअतन व इश्रीन मिन अस्सहाबा, कहते मैंने 120 सहाबे किराम को पाया। मैंने उनकी मजलिसों में बैठ करके एक से जायद मर्तबा देखा कि बड़े बड़े सहाबे किराम 120 मजलिस में बैठे हुए हैं। साइल आकर के सवाल करता, मेरा ये मसला है, इसका क्या जवाब है? वो सहाबी रसूल कहते, इनसे बगल वाले से पूछ लो। उनके पास जब वो साइल जाता तो वो भी जवाब नहीं देते, वो कहते कि नहीं, उसके बगल वाले को हवाला देते, अपने बगल वाले को, उनसे जाकर के पूछ लो। ऐसे समझ लो कि इब्ने मसूद के पास कोई आया तो कहते कि नहीं, इब्ने अब्बास से पूछ लो। इब्ने अब्बास के पास कोई आया तो कहते मुआद बिन जबल से पूछ लो। उनके पास जब आता तो कहते नहीं, मैं भी जवाब नहीं दूंगा, मुझे अल्लाह का खौफ है, कहीं गलत हो जाए मसला तो इसलिए फला से पूछ लो। कहते यहां तक कि वो वापस घूम करके पहले आदमी के पास आ जाता। इल्ला वद्दा अहदहुम अन यकूना अखाहु कद कफा, कहते हैं हालत ये होती थी कि हर आदमी चाहता था कि मुझे जवाब ना देना पड़े, मेरा भाई काफी हो जाए मेरी तरफ से उसका जवाब देने के लिए, मैं इससे बरी रहूं, बचा रहूं तो बेहतर है, ताकि ये जिम्मेदारी हमारे सर पर ना आ जाए। अल्लाह ताला कल ना पूछे कि तुमने जवाब जो दिया था वो गलत जवाब दिया था और इसने गुमराही पर अमल किया है, गलत पर अमल किया है, इसकी सजा इसे तो मिलेगी ही, तुमको भी मिलेगी। मेरे भाई, इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ही कहा करते थे, आज हालत कैसी है, बरादरों के बारे में कई एक सवालात यहां आए हैं, ऐसा लगता है कि बहुत महदूद रह करके काम करते हैं।
मुझे एक ब्रदर का नाम बताओ जो स्टेज सजाकर सवाल का जवाब न देता हो। जितने लोगों को आप जानते हैं उनमें से किसी का नाम बताएं जो स्टेजों से सवालात के आवाम के सवालात का जवाब न देता हो। सारे के सारे आवाम के सवालात के जवाब देते हैं। अब आवाम के सवालात है, अकीदे के सवाल भी, मनहज के सवाल भी, हलाल और हराम के सवाल भी, और मामलात के सवाल भी, इबादत के हर तरह के सवालात आते हैं कि नहीं आते? कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी आजमाइश है। बड़े बड़े अइम्मा तो मेरे भाइयों 10, 20, 30, 40 मसाइल के बारे में कह दें मुझे नहीं मालूम है, इक्का दुक्का का 2-4 का जवाब दे दें, और मरने का टाइम आए तो रोएं कि 3-4 का जवाब तो दे दिया था, अगर वो गलत हो गए होंगे तो अल्लाह के यहां क्या जवाब दूंगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आज सारे बेदार सवाल का जवाब देते हैं कि नहीं देते? हर एक सवाल का जवाब। इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कुल्लु मन युफ्ती फी कुल्ली मा युस्तफ्ता मिन्हु फहुवा मजनून। जो शख्स तमाम मसाइल का जवाब देता हो वो पागल आदमी है। जिस शख्स से बहुत सारे फतवे पूछे जाएं और हर फतवे का जवाब देता चला जाए वो मजनून है। इसका मतलब उसे कोई शऊर ही नहीं है, हर एक का जवाब देता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से बहुत ज्यादा यानी कह लीजिए महदूद बात करके यह साबित करना कि नहीं इनको भी अहलियत होनी चाहिए, ये भी दर्स दे सकते हैं, खुतबा दे सकते हैं, मेरे भाइयों किसी दायरे पर रुकते नहीं हैं, किसी हद तक महदूद नहीं रहते। ये स्टेज हाथ आया तो फिर वो पूरे तौर पर आजाद। और फिर मीडिया का दौर है, जिसको जितनी शोहरत मिल जाए, जिसको जितना जिसका चर्चा हो जाए, जिसकी जितनी मकबूलियत हो जाए, फिर वो उससे पीछे नहीं हटना चाहता, क्योंकि फिर अब तो उसके अपना वकार बचाने की बात आती है, उसे अपनी मकबूलियत संभालने की बात आती है, उसे अपना क्रेज संभालने की नौबत आ जाती है कि अब कैसे तनाजुल करे। वो सारे सवालात के जवाब नहीं दूंगा मैं तो फिर लोग मुझे क्या समझेंगे, ये आदमी नहीं जानता, ये देखो फला मसले के बारे में कहता है कि मैं नहीं जानता। और ऐसा तो होता भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। आमतौर पर लोग सारे सवालात के जवाब देते ही देते हैं। आप बताइए कि एक आदमी बरस का इल्म हासिल करता है और वो जवाब देने से कतराता है कि भाई मुझे इस मसले का इल्म नहीं है, और एक आदमी चंद महीने पढ़ करके या साल 2 साल पढ़ करके हफ्तावारी या 2 हफ्ता 3 हफ्ता पढ़ करके महीने में ये समझे कि अब हम मैदानी दावत पर ऐसे ही फाइज हो सकते हैं जैसे उलमा और दुआत फाइज हो सकते हैं, तो आप बताइए कि क्या इंसाफ की बात होगी ये? तो बहरहाल मेरे भाइयों बात समझने की है, इल्म हासिल करें, इल्म के अंदर जितनी आपको मालूमात होती जाए उतनी आप बताते जाएं, जहां आप रहें उसकी रोशनी आप फैला दें, इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई मना नहीं करता। मेरे भाइयों मसला सिर्फ कहां आता है कि एक आदमी महदूद मालूमात के साथ मसनद दर्स पर बैठ जाए, मसनद खिताबत पर बैठ जाए, स्टेज पर आ जाए, दाइस पर आ जाए और घंटों घंटों की तकरीरें करें, घंटों घंटों मसाइल बताएं। इसका हक बहरहाल मेरे भाइयों नहीं पहुंचता सिवाय उन उलमा के जो इसके अहल हैं। अल्लाह ताला हम सबको हकीकतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।